Hello students, welcome back to a physics lecture in which we were discussing the chapter Work, Energy and Power. Hope so you are clear with the first video of the same chapter, that is Work, Energy and Power, which I have made. Hope so you have gone through that video because that was a basic video for all the further chapter details. And there were two important discussions in that previous video which you have to go through. Okay, it was very important. Today, we will be seeing different type of work, that is positive, negative and so on. Before that, let us recollect what we have learned in the previous class. What was the formula for work? Formula for work was work done equals to force into displacement. This was the formula we have seen in the previous class. Okay, when object, in this case, this was in this case. But when object is moving at an inclined position, you will see that there is an angle formed in this case. Let us consider theta. Let us consider this is theta, angle formed between the force. So, at the initial condition, force was horizontal, but displacement was at certain angle. This was the force, this was the displacement at a certain angle. In this case, when there is angle formed between the force and the displacement, you will see a formula changes to work done equals to force into displacement, and one more, that is a trigonometric component, that is cos theta. Trigonometric component comes into the picture, that is cos theta. Always to remember for this. Okay, you can learn the single formula, that is Fs cos theta. This is the best way to remember a single formula. No need to learn Fs cos theta. In this case, if you want to convert this Fs cos theta into Fs force into distance only, in this case, the second case, which I am talking about, this is the first case, inclined one, this is the second case. In this case, angle is of 90 degree. You can say angle is of 90 degree. Cos 90 equals to, if I am putting theta, if I am using theta as 90 degree, so cos 90 equals to 1. So this quantity will be 1. So work done will equals to F into S. So you will get this formula. Okay, clear? So to remember the simple one, that is work done equals to force into displacement and the component of trigonometry, that is cos theta. Okay. Now let us recollect something from the previous video. We have seen that whenever the force and displacement is at an angle, we find the components, because we have seen in physics or in the mathematics section of physics, force always is calculated in the horizontal or vertical, or any quantity. You can select any quantity. The force is always force or any physical quantity. If you have to calculate, it should be in a horizontal or a vertical direction. But in our case, you can see that object is moving at an inclined position. So object is moving at an inclined position. This one at certain angle. So whenever your force or object is moving at an incline, you have to find the component of this section. You have to find the component. What does component mean? You have to break this section. And we will be using the trigonometric function, that is sin theta and cos theta. I have explained in the previous video how to use sin theta and cos theta. So please go through that. Okay. So we can find the component of displacement. We can break the displacement into S sin theta and S cos theta. Okay. In which we are using S cos theta in the given function. Okay. Let's go through the last video. Same, we are finding the component of F cos theta. In this case we will be finding the component of force. Two method. So this will be F cos theta. Go through the previous video, you will get to understand this. Okay. Now let us start with a new topic today.
that is a force. Let me clear this. Okay. Now we'll be starting with a new topic. That is, we'll be seeing the work done. The work done which we calculate are of three types. That is positive work done, or you can see the negative work done, or sometimes you will see the zero work done. Okay. What is positive work done, what is negative, and what is zero work done, we'll be seeing in today's lecture. Okay. So let us start with the first point, that is positive work done. भाई positive work done क्या होता है? Let us read. Displacement. If the displacement is in the direction of force, if the displacement and direction are in the same if the displacement in the direction of force, then the work done is said to be positive. Then work done is said to be positive. Let us see. What does it mean? Let us consider this is an object, a box kept on a floor or a table, and applying a force towards right hand side on this box. Okay, so this box is moving towards right hand side. So you can see force is applied on the right hand side and displacement is also on the right hand side. Such condition, the work done over here, what is the formula for work done? Work done equals to force into displacement into cos theta. This is the formula that we have seen. Okay. And what is theta? Theta is an angle formed between force and displacement. Now you can see they both are parallel or collinear. You can say like displacement is such like this. So there is no angle between force and displacement. Therefore, in this condition, theta equals to 0. And what is the value of cos theta? Cos 0 equals to 1. What is cos 0? Cos 0 is equals to 1. Means what does it mean? The quantity, this one, cos theta, this will convert into 1. So our formula will modify it into W equals to F into S. That is force into displacement. Now you can see over here. You can see formula, how it is converted into work done equals to force into displacement. We have used the formula same, that is this one. Work done equals to force into displacement into cos theta. But in this case, angle made by the force and the displacement, angle made between force and displacement is 0. That is theta equals to 0 degree. Because they are collinear. Or you can say parallel. In this case, cos theta, if you put the value of theta, that is 0 degree, so cos 0 is equals to 1. In which F equals to S. Sorry, W equals to Fs. चीजें क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Okay. So this is a formula for the positive work done. What are the example of positive work done? First example is free fall of a mass, of a body of a mass under gravity. Second, coolie does a work on the load. Third, body revolving in a circular path. Okay. Now let us see one by one the exact example. You can see this object in the first example. This is second example. This is our third example. You can see in the first, the object is moving in a downward direction. This is the object movement, that is displacement. Now let us talk about the force. Force applied on this object is in downward direction. What kind of force is applied? That is gravity force. Gravity is pulling this object in downward direction. So force applied is also downward direction. Object is moving in downward direction. So this is positive work done. Example of positive work done. Okay. Now let us see the second example. This pulley, the pulley standing over here in the second example, he picked up some load. He picked up some load of a traveler from this position. Let us consider each load tha. This load was kept at the ground. Let us consider this load was kept at the ground. He applied the force in upward direction to pick this. He applied the force on this load in upward direction so that he can lift that load. And the displacement of this object was also on the same direction, that is on the upward direction. So force and displacement on the same direction. So this is a example of positive work done. Is it clear? And now you can be confused in the third example. Okay. But it's a body revolving in a circular path. Now ध्यान से देखिए. This is an object.
let us say point A. Force is applied in a tangential form. In this condition, we have seen in the circular motion, this is the force. And body is also trying to move in the same direction, that is displacement. देखो body revolve हो रही है. Due to centripetal force, there is some another force which is acting on this object, that is centripetal force. We have seen in the previous chapter, that is fourth chapter, this is centripetal force due to which body is revolving. But if we remove this centripetal force, the force applied on this object, that is speed, is on the frontward direction, as well as soon as I cut off this centripetal force, जैसे ही मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को रिमूव कर देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट भी किस तरफ मूव करेगा? आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, in front direction. So object will move in front direction. So this is also an example of positive work done. Clear? So if there is a positive work done, there might be a negative work done. Okay, so the next point will come, that is negative work done. So what is negative work done? Let us see. If the displacement is in the direction opposite to the force, what does it mean? If I am saying force is applied on this object is on the right hand side and displacement is on the left hand side, then such kind of work done will be negative work done. This type of force is called as, the work done is called as negative work done. Okay. In this case, you can see they are opposite. Means force, if I am drawing here force, and this is displacement. This is force, this is displacement. So the angle formed between force and displacement is completely from force to distance. This is 180 degree. Fine, this is 180 degree. So theta equals to, our case, is 180 degree. And for your information, cos 180 equals to minus 1. So according to the formula, W equals to Fs cos theta. If I put cos theta, if I put minus 1 over here, then W equals to F into S into minus 1. So it will be W equals to minus Fs. It is work done equals to minus. So this is negative work done. This is negative work done. Hope so you are clear. The formula for the negative work done, there is always negative sign in that. So clear है? So work done is negative over here. चीजें क्लियर? कुछ एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं. ये तो हो गया टेक्निकल. कुछ एग्जांपलों से समझने की कोशिश करते हैं. We'll try to understand with some example. When body moves on the surface, the force of friction between the body and the force and the surface is in the opposite direction. Of course, friction. What is friction force? Friction force is always an opposing force. It always opposes the motion. किसे oppose करता है? Motion को oppose करता है. Let us see in our example over here. Let us see our example. Okay. What is friction? Friction is a force that acts against means opposite direction, or stop the motion when two surfaces rub against each other. Now you can see this example. There is an object. This is an object A, in which pushing force is on the right hand side. So motion should be on the right hand side, but there is force applied on the left hand side, which is of friction force. This is friction force, opposite in direction. ठीक है. अब ऐसे समझते हैं. जैसे आप बाइसिकल चलाते हो, जब हम बाइसिकल करते हैं, पेडलिंग करते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया जब तक हम पेडलिंग करें तब तक हमारा साइकिल मूव करता है. जैसे ही हम पेडलिंग छोड़ देते हैं, पेडलिंग करना बंद कर देते हैं, एज वी स्टॉप पेडलिंग, आप देखोगे कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके आपका साइकिल रुक जाता है. रीजन क्या है? आपने क्या कर दिया? आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो था ना, जब पेडलिंग कर रहे थे, आपने एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दिया, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया. अब क्या हो रहा था? ये आपका टायर था. दिस वाज टायर ऑफ योर बाइसिकल, दिस वाज योर रोड. अब बाइसिकल तो आगे मूव कर रहा था, बाइसिकल आगे की तरफ मूव कर रहा था, पर जैसे ही बाइसिकल ये जो रोड के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है,
कॉन्टैक्ट फोर्स क्या, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट. दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज योर नॉर्मल फोर्स. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, नॉर्मल फोर्स को कट डाउन कर रहा था और धीरे 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 जीरो की तरफ बढ़ा रहा था, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ाते जा रहा था, कम कर रहा था आपके फोर्स को. Therefore, the friction force is a negative force. Or you can say, whenever an object does a work when they are contact, okay, if there is friction force exists, then the work done on that object will be negative work done. Clear है, याद रहेगा, बहुत आसान है. चल आगे की तरफ बढ़ते हैं. अब ये तो हो गया नेगेटिव वर्क डन. और एक एग्जांपल देखते हैं. व्हेन अ बॉल ऑफ मास m is thrown in upward direction. आपने देखा होगा फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ग्रेविटी भी उसे नीचे की तरफ पुल कर रहा था, ऑब्जेक्ट का मोशन भी नीचे की तरफ था, तो पॉजिटिव हो गया. जैसे ही हम बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट देयर इज बॉल, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन. बट ग्रेविटी से क्या कर रहा है, ग्रेविटी से नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है. ग्रेविटी से क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट बॉल को नीचे खींचने की कोशिश करेगा, और बॉल का मूवमेंट क्या है, अपवर्ड, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन. तो ये भी एग्जांपल हुआ नेगेटिव फोर्स का. ठीक है, अब पढ़ते हैं थर्ड, दैट इज जीरो वर्क डन. If the displacement is a normal, the displacement is normal. Normal मतलब क्या होता है, perpendicular. If the displacement is normal, it's perpendicular to the direction of force. That is theta equals to 90 degree, and cos 90 will be 0. So work done, you can see over here, is 0. So work done is 0 in this case. Work done in this case is 0. So work done in this case is 0 whenever the theta, okay. So if theta equals to 90 degree, so cos 90 equals to 0. Therefore, the formula according to the formula W as cos theta. If cos theta is 0, if this quantity is 0, then work done will be 0. सिंपल सी बात है. ठीक है, अब इसका कई एग्जांपल समझते हैं. पहला, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 0 वर्क डन है, सर्कुलर मोशन. सेकंड, कुली कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड वॉकिंग. अब जब कुली ने ऑब्जेक्ट, हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन में, फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा था, ऑब्जेक्ट भी अपर डायरेक्शन में. तो जब उठा रहा था, जब कुली वो पर्टिकुलर वर्क डन कर रहा था, उस लगेज को ऊपर की तरफ उठा रहा था, वो पॉजिटिव वर्क डन कर रहा था. फर्स्ट केस में जब लगेज को उठा रहा था तो पॉजिटिव वर्क डन. और अब इस लगेज को अगर वो लेके चल रहा है तो इस लगेज पे वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन इक्वल टू 0 हो रहा है. क्यों, बिकॉज अब इसका मोशन देखिए, अगर मैं कोशिश करूंगा इसको 3D में समझने की कोशिश करूं, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अपवर्ड की तरफ लगा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो थीटा कितना बना, दैट इज 90 डिग्री. सो वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कितना हुआ, ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हुआ है 0, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 90 डिग्री बन के आएंगे, इसलिए वर्क डन 0 हो गया. ठीक है, अगर तीनों चीज को मैं समराइज करता हूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा. डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स 90 डिग्री, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, थीटा 90 डिग्री, तो वर्क डन 0. और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब 90 डिग्री. 90 डिग्री अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है तो वर्क डन विल बी 0. If force and displacement are on the same direction, it is positive. एंगल यहाँ पे होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इस तरफ होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट में है, मतलब इस केस में होता है 180 डिग्री. सो योर वर्क डन विल बी नेगेटिव. पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, वर्क डन 0 कब होगा, वर्क डन 0 होगा, इसके आपको नोट बना लो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, द सेम डायरेक्शन होता है. वर्क डन नेगेटिव कब होगा,
वर्क डन नेगेटिव होता है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। चीजें क्लियर है यहाँ तक? है ना, आसान सा टॉपिक था। चलो आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ वर्क डन पढ़ते हैं। यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है? ओके, यूनिट ऑफ वर्क डन में सबसे पहले एक डेफिनेशन आता है, यूनिट ऑफ वर्क डन होता है। यूनिट क्या होता है? अब हमें वर्क डन के बारे में पढ़ लिया, सब मेजर भी तो करना पड़ेगा, वी हैव टू मेजर दिस वर्क। सो यूनिट फॉर दिस इज, यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, SI यूनिट, दिस इज SI यूनिट। व्हाट इज CGS यूनिट? CGS यूनिट विल बी, क्या होगा? CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट विल बी योर अर्ग। दिस इज योर CGS। जैसे डिस्टेंस का मीटर और सेंटीमीटर होता है ना, SI मीटर, CGS सेंटीमीटर, उसी तरीके से जूल और अर्ग। यहाँ तक चीजें क्लियर? सो डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन। 1 जूल क्या होगा? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इसे लर्न करना है, और इसे लर्न करना बहुत ही आसान है। क्यों? देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, अगर इसमें कंप्लीटली ये कन्वर्ट चाहिए, समझते रहे राइट हैंड साइड के। ठीक है, क्या होगा? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमें, अब हम इसके अगर यूनिट लिख दे तो क्या होगा? वर्क डन का यूनिट हो जाएगा जूल, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। अब वो कह रहे हैं कि आपको वन जूल के बारे में बताइए। 1 जूल चाहिए, तो 1 जूल के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1 1 लगा दूंगा मैं, 1 यहाँ पे 1, इस तरफ भी 1 होगा, इस तरफ भी 1 होगा, 1 इंटू 1 1, तभी तो 1 आएगा आंसर। बन गया डेफिनेशन। क्या कह रहा है? 1 जूल of work done is defined when a force of 1 Newton is applied on the body, an object displaced through 1 meter is known as 1 joule। बन गया डेफिनेशन। 1 अर्ग क्या होगा? 1 अर्ग क्या होगा? सबकी यूनिट स्मॉल कर दो, ये हो गया डाइन और ये हो गया सेंटीमीटर। सिंपल है, बन गया आपका 1 अर्ग का डेफिनेशन। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट जो हमें पढ़ना है, दैट इज दिस इम्पोर्टेंट पार्ट। ये एग्जाम में आता है, दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन बताइए। सिंपल क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, कोई घुमा के चीजें यहाँ पे नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है और बहुत आसान भी। जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से आप देखोगे। क्या कह रहे हैं? रिलेशन बिटवीन जूल और अर्ग के बीच में बनाना है। तो अगर मैं 1 जूल के बारे में कहता हूँ, जो हमने पढ़ा है, 1 जूल क्या होता है? 1 जूल होता है सर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यही होगा। बट वी नो दैट 1 न्यूटन इक्वल्स टू, अब जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना मतलब इसका यूनिट को छोटा करना, तो सबकी यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा। 1 न्यूटन क्या होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन। और 1 मीटर क्या होगा? 1 मीटर क्या होता है? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। सबको छोटा यूनिट करना है। जूल को अगर अर्ग में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड की यूनिट को छोटा करेंगे, तो क्या बन जाएगा? 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन के प्लेस में हम क्या कर सकते हैं? 10 टू द पावर 5 डाइन लिख सकते हैं, इंटू 1 मीटर की जगह पे हम लिख सकेंगे 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 10 टू द पावर कॉमन तो हो जाएगा 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, और डाइन सेंटीमीटर और इसी को कहते हैं, स्मॉलर यूनिट को ये कहते हैं 10 टू द पावर 7 अर्ग। कितना आसान है देखो। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन 1 जूल एंड अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। देखो कितना आसान है, सीधा, इतना सिंपल आता है। दो मार्क के लिए बस क्या लिखना है? 1 जूल का आपको फॉर्मूला लिखना है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, इसके बाद आपको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है राइट हैंड साइड, ऑटोमेटिक वो अर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। अगर ये भी आप नहीं बनेगा तो फिर बताइए कैसे मार्क्स कवर स्कोर करेंगे? अगर इतना आसान चीज हम नहीं बना पाएंगे तो कैसे करेंगे स्कोर? इतना आसान है, सीधा 2 मार्क का आता ही है, और बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स का। अगर बोर्ड की हिसाब से पढ़े, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आता है, फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। पावर क्या होता है? अब आते हैं वर्क। ओके,
वर्क हो गई। अब पावर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट हमारा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड, तो वर्क, एनर्जी और पावर। वर्क हमने कंप्लीट किया, पावर के बारे में जानते क्या होता है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब कितने वक्त में, रेट मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेट? रेट का मतलब होता है टाइम। रेट का मतलब होता है टाइम। कितने टाइम में आप वर्क कर सकते हो, उसी को पावर कहते हैं। कितने टाइम में आप, जितने जल्दी वो एक पर्टिकुलर वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है ए एंड बी, इन दोनों को कहा है कि 100 केजी ऑफ लोड आपको उठाना है। 10 केजी की आपके पास बोरी है, 10 केजी की सैक है 10, जो कि 100 केजी हो गया ऑलमोस्ट। पर्सन ए ने पर्सन बी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में डंप करना है, इस प्लेस में फ्रॉम एक्स टू वाई। पर्सन ए को वक्त लगा इसे उठा के यहाँ पे रखने के लिए 30 मिनट्स। पर्सन बी को वक्त लगा 25 मिनट्स। मतलब पर्सन बी ने जो टाइम कंज्यूम किया है वो लेस कंज्यूम किया है एज कम्पेयर टू पर्सन ए। इसका मतलब पावर किसमें ज्यादा हो? पर्सन बी में पावर ज्यादा हो, बिकॉज दोनों ने काम तो सेम किया। हमने देखो वेट, मास, डिस्टेंस, फोर्स सब सेम रखा है, बस वक्त कम ज्यादा लगा। मतलब बी ने बहुत तेजी से काम किया। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो उसी हिसाब से बी में पावर क्या हुआ? पावर ऑफ बी इज मोर एज कम्पेयर टू पावर ऑफ ए। चीज समझ में आ गई? तो फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर, फॉर्मूला भी ऐसे है, P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। P इक्वल्स टू क्या है? P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो दिस इज योर पावर। चीजें क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पावर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर इज एन स्केलर क्वांटिटी, तो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी, पावर इज एन स्केलर क्वांटिटी। ओके बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है? वॉट। पावर इज मेजर्ड इन वॉट। वर्क डन किस में था? जूल में था। मतलब वर्क डन का एक टाइप ऑफ एनर्जी, पावर वॉट में। अब इसमें आता है 1 जूल। 1 जूल क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 सेकेंड, द पावर स्पेंड टू बी 1 वॉट। एक सेकेंड में आप जितनी एनर्जी स्पेंड करोगे, फॉर्मूले से ही समझ में आता है। क्वेश्चन हम बना, इसका तो डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 वॉट, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। यहाँ पे आप 1 जूल कर दो, यहाँ पे 1 सेकेंड कर दो, दोनों का ऐसा यूनिट लिख दो, तो कितना हो जाएगा? ये भी यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी 1 वॉट। यूनिट तो यही है ना। 1 वॉट क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 वॉट। अब आते हैं नेक्स्ट, एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। इसकी कैपेसिटी कितनी है? क्या ये उस वर्क को कर सकता है या नहीं कर सकता? फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट ए, पर्सन ए, पर्सन बी, एक सैक रखी है 10 केजी की, 10 केजी की सैक रखी है। पर्सन ए इस सैक को उठा सकता है, पर्सन बी से नहीं उठा सकता। मतलब इसमें क्या है? एनर्जी ऑफ पर्सन बी इज लेस देन एनर्जी ऑफ पर्सन ए। सिंपल, सिर्फ उठाना है। एनर्जी ऑफ बॉडी से कैपेसिटी, मतलब वो उठा सकता है या नहीं उठा सकता है। तो पावर क्या था? पावर कुछ अलग था, वर्क डन अलग था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? ओके। एनर्जी और पावर में आप डिफरेंस फाइंड करोगे, आपको आपके बुक में मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट उसके कुछ यूनिट्स मिलेंगे। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट हमेशा जूल होता है। एनर्जी का यूनिट, किसी भी तरीके की एनर्जी आप कैलकुलेट करो, उसका यूनिट हमेशा जूल रहेगा। आप हीट एनर्जी कैलकुलेट करोगे, हीट एनर्जी कैलकुलेट करोगे, इसका भी यूनिट आपको जूल मिलेगा। वर्क डन कैलकुलेट करोगे, वर्क डन भी एक तरीके की एनर्जी, इसका भी यूनिट आपको जूल मिलेगा। ठीक है, किसी भी तरीके की आप एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट जूल। ठीक है, जूल मिलेगा। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी आती है। अगर मैं बात करता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कितनी थी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जनरेट करता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल की एनर्जी जनरेट करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी जनरेट करता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब डिफरेंशिएट बिटवीन देखोगे सारी चीजें। अब हो गई हमारी थियरी सेक्शन। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन, और जो हमने स्टडी किया है क्या अब हमें समझ में आता है या नहीं आता है, ये देखते हैं। एप्लीकेशन देखें।
ओके, चलो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, शुरू करते हैं एप्लीकेशन। सभी न्यूमेरिकल को नोट डाउन करना है और न्यूमेरिकल को फ्रीक्वेंटली देखना है, समझते जाना है कि न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, किस तरीके से हम समझा रहे हैं न्यूमेरिकल को बहुत देखना है, ठीक है, ध्यान से। ओके, चलो सॉल्व करते हैं वन बाय वन। क्रेन पुल्स अ कार ऑफ मास तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, गिवन क्या है, दैट इज मास इज गिवन एज 500 kg। तो वर्टिकल हाइट दी है, हाइट इज गिवन एज 4 मीटर। दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट टू फाइंड वर्क डन। इफ हम सॉल्यूशन देखते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसे cos थीटा भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे cos थीटा का ये साथ हम यूज करेंगे। क्या कह रहे हैं स्ट्रक्चर, ऐसा समझते हैं, दिस इज अ कार, एक क्रेन इसे अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, मतलब फोर्स को ऊपर की तरफ लगा रही है। ऑब्जेक्ट भी कैसे ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये तो सेम डायरेक्शन, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो दिया नहीं है, यहाँ पे फोर्स नहीं दिया है, फोर्स नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या डिस्प्लेसमेंट, हाँ 4 मीटर का दिया है डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है, ध्यान दो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 4 मीटर, फोर्स नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे देखोगे। सो फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से हो रहा है एक्सेलरेशन। देखो ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन खींचने की कोशिश करेगी, एक्सेलरेशन फोर्स क्या हो गया। सो फोर्स, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था फोर्स ही तो वेट होता है, फोर्स ही तो वेट होता है, तो यहाँ पे मास दिया था, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 500 kg इनटू 9.8, दिस विल बी 4900 न्यूटन। तो आपको फोर्स मिल गया, क्या अब हम सॉल्व कर सकते हैं, यस नाउ वी कैन सॉल्व। वर्क डन इक्वल टू फोर्स क्या है 4900 इनटू डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 4 मीटर, सो द वर्क डन विल बी 1960 जूल, यूनिट विल बी जूल। दिस इज योर फर्स्ट बेसिक न्यूमेरिकल, बहुत बेसिक है। क्या था, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स यहाँ पे डायरेक्ट ने दिया था, मास गिवन था, तो आपको मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो फोर्स बन जाएगा, फोर्स को आप पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। नहीं समझ में आते तो फिर से इस क्वेश्चन को देखना है और समझने की कोशिश करना है। सेकंड न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा एक लेवल अप क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लेवल अप कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा हो चुका है लेवल अप, दिस इज लेवल अप क्वेश्चन। लेवल अप क्वेश्चन क्यों का, क्वेश्चन देखते ही साथ हमें समझ में आ गया, देखो यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे cos थीटा के बारे में कहीं ना कहीं रोल आएगा, cos थीटा का कहीं रोल तो आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, गिवन बनाते हैं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स दे दिया है भाई, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे गिवन बनाते जा रहे हैं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी बाय डिस्टेंस 2 मीटर, डिस्टेंस मतलब एस 2 मीटर एट एन एंगल 60 डिग्री, एंगल मतलब थीटा, थीटा 60 डिग्री, टू इट्स ओन डायरेक्शन, टू इट्स ओन डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे हिंट दिया है कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन मतलब जिस तरफ आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये केस हो गया, दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव वर्क डन, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आएगा, हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड बनाते हैं, टू फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसमें भी वर्क डन ही कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं cos, यहाँ पे क्या है वैल्यू, क्या है थीटा की, थीटा इज 60 डिग्री, एक्स्ट्रा पार्ट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, देयरफॉर cos 60 इक्वल्स टू हाफ, cos 60 इक्वल्स टू हाफ, आपको सभी को पता होगा cos 60 हाफ होता है। लर्न करना है, सभी के ये फॉर्मूलेज लर्न हो जाने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज,
साइन और कॉस के, ठीक है। ओके, क्या हमें गिवन है, फोर्स गिवन है यस, डिस्प्लेसमेंट गिवन है यस, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई हाफ। ओके, तो हम अब सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं सर। ओके, सो वर्क डन विल बी, फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स इज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर एंड cos थीटा इज हाफ, बिकॉज 2 से 2 कैंसल आउट, वर्क डन इक्वल्स टू 10 जूल। जूल ही आएगा वर्क डन का फॉर्मूला प्लस और यूनिट। ये वैल्यू सबको लर्न करनी है बच्चों, साइन और कॉस का, ठीक है। कैसे लर्न करते हैं, दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जिसकी कुछ वैल्यू स्टैंडर्ड होती है और आपको लर्न होनी चाहिए। क्या वैल्यूज होती है, साइन 0 1 होता है, साइन 30 क्या होगा, हाफ, साइन 45 अगर होगा 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 0। समझ में, एक वैल्यू लर्न करें, साइन 0 क्या होगा, अगर साइन 0 होता है मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो साइन की वैल्यू साइन 0 क्या होगा 1 हो जाएगा। अब जब इसे हमें पढ़ना है कॉस के साथ तो इसे उल्टा लिख दीजिए, हो जाएगा 0 √3/2, इसका क्या आएगा 1/√2, सेम अपोजिट डायरेक्शन में लिखते जाना है, यहाँ पे आ जाएगा हाफ, इस तरफ आ जाएगा 1, तो cos 60 कितना हो गया, हाफ हो गया। cos 60 कितना हो गया, हाफ हो गया। समझ में कैसे लर्न किया हमने, साइन का लर्न करना है, साइन का भी लर्न कैसे करते जाओगे, देखो साइन का जब हम लर्न करते हैं 1 यहाँ पे आएगा, 0 आखिरी में आएगा, 1 के बाद इसे छोटा कर दो हाफ हो जाएगा, 1 का छोटा आधा कर दो हाफ हो जाएगा, हाफ को ऐसे ही रखो, रूट लगा दो 2 पे, मतलब 1 पे भी रूट लगाओगे तो कोई बात नहीं है, 1/√2, फिर 3, बस ये याद होना चाहिए √3/2। इसे अपोजिट डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दो तो आपका कॉस का बन जाएगा, साइन 0 1 पहले था तो 1 आखिरी में लिख दो, फिर हाफ, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 0। चीजें क्लियर है, तो इस तरीके से आप अपने साइन और कॉस की वैल्यू लर्न कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एंगल से तो साइन 60 आ गया, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में आ सकता है, जरूरी नहीं हमेशा साइन 60 है, साइन 30 कॉस 30 आ गया तो कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 √3/2 होगा, अब उस तरीके से सॉल्व करोगे। कॉस 45 पूछा तो 1/√2, कॉस 0 आ गया तो 0, कॉस 90 आया तो 1, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से हमें पता होनी चाहिए सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं, बहुत आसान है न्यूमेरिकल, लेवल अप तक। अब फिर से लेवल अप बढ़ाते हैं, लेवल अप बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, एक बार बोर्ड में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क क्वेश्चन, ये फिर से लेवल अप क्वेश्चन है। लेवल अप क्यों है समझ में आ जाएगा। गिवन, सबसे पहले गिवन से शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 पेजेस लगेंगे तो ध्यान देना। अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप। बॉय को फर्स्ट केस कर देते हैं, ठीक है। अ बॉय ऑफ मास 40 kg मतलब मास ऑफ अ बॉय, मास ऑफ अ बॉय गिवन है हमें, मास ऑफ द फर्स्ट पर्सन, लेट अस बी लिख देते हैं, चलो बॉय फॉर बी। मास ऑफ बॉय इज 40 kg, क्लाइम्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप, 30 स्टेप है मतलब कुछ इस तरीके से, इस तरीके से स्टेप है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं कुछ और को डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन को समझना, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, क्लाइम्स अप अ स्टेप, कुछ इस तरीके से स्टेप्स है, बहुत सारे, कितनी स्टेप्स है 30 स्टेप्स है, ईच 20 सेंटीमीटर है,
सबकी हाइट कितनी, हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ना, स्टेप की हाइट, दिस इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर हाई इन 2 मिनट्स। ओके, तो इसे 30 स्टेप, पूरी 30 स्टेप्स चढ़ने के लिए कितने वक्त लग रहा है, 30 स्टेप्स, इसे वक्त लग रहा है 2 मिनट। ठीक है, 30 स्टेप को क्लाइम करने के लिए 2 मिनट किसे लग रहा है, ये बॉय का केस हो गया, ये बॉय का केस है। ठीक है, अब गर्ल का केस देखते हैं, क्वेश्चन पढ़े। एंड अ गर्ल ऑफ मास, मास ऑफ गर्ल दिया है, मास ऑफ गर्ल इज 30 kg, does the same in 1.5 मिनट। तो गर्ल तो बहुत तेज है, बहुत बढ़िया। तो कुछ ऐसी स्टेप है, सेम स्टेप के बारे में बात करें, सेम स्टेप मतलब कितने स्टेप, 30 स्टेप, कितना वक्त लग रहा है, ये टाइम, वन बॉय, टाइम ऑफ ए कितना है 1.5 मिनट, ये 1.5 मिनट में ही पूरे स्टेप्स। ठीक है, सेम स्टेप है तो इसका हाइट भी कितना रहेगा, सेम स्टेप है तो हाइट रहेगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जी की वैल्यू गिवन है, ध्यान दीजिए, जी की वैल्यू गिवन है। ओके, तो टाइम ऑफ बी इक्वल्स टू 2 मिनट, टाइम ऑफ ए इक्वल्स टू 1.5 मिनट। ठीक है, टाइम ऑफ बी दिया है, टाइम ऑफ ए दिया है, गिवन है 2 मिनट और 1.5 मिनट। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, कंपेयर वर्ड है यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना है, कंपेरिजन का मतलब क्या होता है वो समझाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपेयर, पहले वर्क डन आपको कंपेयर करना है किसके बीच में, गर्ल और बॉय के बीच में, और सेकंड पावर डेवलप बाय देम, दोनों के बीच में वर्क डन और पावर का कंपैरिजन चाहिए। कंपैरिजन जब भी क्वेश्चन में आता है, तो एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे आएगा कंपेयर मतलब होता है रेशियो, कंपैरिजन का मतलब होगा रेशियो। तो क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, किसका, वर्क डन का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टू फाइंड क्या होगा, वर्क डन बाय अ बॉय अपॉन वर्क डन बाय अ गर्ल, और साथ में सेकंड है पावर अप्लाइड बाय बॉय अपॉन पावर ऑफ गर्ल। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, समझ में आ गई चीजें, हाँ है ना, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, क्या फाइंड करना है। चलो, अब वर्क डन हम कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम वर्क डन बनाएंगे, ध्यान दो, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ऑफ बॉय कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगेगा। यहाँ पे एंगल के बारे में बात की है, नहीं तो एंगल तो हटा दीजिए, cos थीटा को एकदम हटा दिया हमने, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना कैलकुलेट है आपको, ये कैलकुलेट करना है सबसे पहले, और फोर्स कितना लगा, फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अ बॉय कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना हो जाएगा, मास इज गिवन एज 40, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एज 10, यहाँ पे देखिए राइट टॉप में 10 हमें कंसीडर करना है। सो फोर्स इन दिस कंडीशन विल बी 400 न्यूटन, 400 न्यूटन तो हो गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, एक स्टेप की हाइट 20 सेंटीमीटर है, 30 स्टेप की हाइट कितनी रहेगी, 30 स्टेप की हाइट कितनी रहेगी, टोटल हाइट इन दिस केस, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बोथ केस पे, टोटल हाइट इक्वल टू 30 इंटू 20, कितना ट्रेवल करेगा, 600 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ध्यान देना है, 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर होगा, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 6 मीटर, 6 मीटर का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, समझ में आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट हो गया है, फोर्स हमें आ चुका है, वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी विल बी 400 into total distance, that is 6 meter, so work done by B equals to 6 4 24, 240 joule। ठीक है, अब आएगा वर्क डन बाय गर्ल इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम, इन दिस केस फोर्स इक्वल्स टू फिर से मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इज गिवन एज 30, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एज 10,
So force in this case will be 300 Newton. So work done by a girl equals to 300 into the same distance she has traveled, that is 600. 6 3s are 18. This is 1800 joules. हमें क्या करना है, हमें तो कंपैरिजन चाहिए, हमें कंपैरिजन चाहिए। कंपैरिजन क्या कहा था हमने, कहा था रेशियो। कंपैरिजन क्या होता है, रेशियो होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्सटर्नल आवाज को सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा है। कंपैरिजन मतलब होता है कि वर्क डन का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो क्या होगा, वर्क डन सबसे पहले कंपैरिजन WB अपॉन WG कितना आया था, वर्क डन बाय बॉय कितना था, वर्क डन बाय बॉय 2400 और वर्क डन बाय गर्ल 1800। तो पुट कर देते हैं 2400 और 1800, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2020, 6 3s are 18, 6 4s are 24, so this will be 4/3. So first का आंसर आ गया। तो कंपैरिजन क्या है, 4/3, रेशियो इज कमिंग 4/3। अब सेम आप पावर के लिए निकाल सकते हो। सेकंड सेक्शन पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर वाज वर्क डन अपॉन टाइम। याद आ रहा है वर्क डन अपॉन टाइम फॉर्मूला। पहले बॉय के लिए निकालते, पावर ऑफ बॉय, वर्क डन बाय बॉय, टाइम कंज्यूम बाय दैट बॉय। पावर बाय बॉय विल बी, वर्क डन कितना था पावर बाय बॉय 2400, टाइम बाय बॉय वाज 2 मिनट्स। इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स पहले कन्वर्ट होगा सेकंड में, है ना। 2 मिनट्स कन्वर्ट नहीं होगा सेकंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट चाहिए। दिस विल बी, ये कन्वर्ट हो जाएगा 120 सेकेंड्स और 1.5 मिनट मतलब 60 और 30, ये हो जाएगा 90 सेकेंड। ठीक है, 90 सेकेंड्स। अब आते हैं, तो यहाँ पे जब हम सेकंड पुट करेंगे तो कितना जाएगा, वो 120, 0 से 0 कैंसल आउट, 12 1 12, 12 2 24 और जो 0 रिमेनिंग है 20। सो पावर B इज 20 वॉट। पावर का यूनिट वॉट होता है ना। पावर ऑफ गर्ल फिर से W बाय गर्ल अपॉन टाइम बाय गर्ल। पावर ऑफ गर्ल विल बी W बाय इस 118 और टाइम था 90 सेकेंड्स। कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 2 18 और ये जो 0 बचा था 20। मतलब कितना का पावर बाय गर्ल इज ऑल्सो 20 वॉट। कंपैरिजन करना था हमें, कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन मतलब क्या होगा, पावर इक्वल्स टू कंपैरिजन पावर ऑफ अ बॉय अपॉन पावर ऑफ अ गर्ल। तो टोटल पावर विल बी 20 अपॉन 20। इस पावर का रेशियो कंपैरिजन 1:1, मतलब उन्होंने पावर अप्लाई की है, दैट इज सेम। तो जो पावर अप्लाई हुआ है वो क्या हुआ है, वो सेम अप्लाई हुआ है। तो दिस इज अ कंक्लूजन। चीजें क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गई ये चीजें। ओके, न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देना, न्यूमेरिकल्स के नोट बनाना है और सभी लेवल ऑफ क्वेश्चन थे, सभी हम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज बना है, 1 2 3, यस 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाए, सभी में अलग अलग था। फर्स्ट में विदाउट एंगल, सेकंड में एंगल का इंप्लीकेशन और थर्ड में पावर और वर्क का कंपैरिजन। ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे जब भी वर्ड कंपेयर आता है, जब भी वर्ड आपको कंपैरिजन मिलेगा, कंपैरिजन वर्ड मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कंपैरिजन मतलब क्या करना है, रेशियो निकालना है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, रेशियो होता है, ये चीजें ध्यान रखना है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब होता है रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है, किसका, वर्क डन का और पावर का। इसलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।